Good afternoon, dear students. Today we have to take a new class, new chapter for the revision. Okay, that is quadrilateral. Okay, this is the mathematics revision for the class 9th, and it is very important for your half yearly examination. So the chapter is quadrilateral. And since it is a revision class, so I think you know very well about the quadrilaterals basic things. Okay, so we have to just go through your syllabus, what are the main topics of your syllabus, okay, and how it is important. Let's see the recording of the cam. Okay, it is working well, so we have to start our class. Okay, without any, 1 second, I have to manage just my duster is not sincere. Okay, there is a duster, I got it. Okay, so just go through the quadrilateral. What are the examples of quadrilateral? You know very well that the square, rectangle, okay, parallelogram are the examples of the quadrilateral, and so many examples are quadrilateral are available, but we have to go some theorem. Okay, now in your NCERT book, the chapter number 8 is quadrilateral, and the theorem number 1, that is 8.1, okay, related to this. तो बेटा जो फर्स्ट आपका थ्योरम है, चैप्टर आपका 8 है, ओके, और थ्योरम का नाम है 8.1 थ्योरम. ओके, प्रूव दैट, या फिर थ्योरम जो कह रहे हैं बेटा ये है, इसको समझिए और इसको प्रूफ करना सीखिए. ठीक है. अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल. ओके, diagonal of a parallelogram divides it into two congruence triangle. ठीक है बेटा, ये है बेटा आपका थ्योरम. और इस तरह से जितने भी थ्योरम हैं, जैसा कि आपने बेटा ट्रायंगल चैप्टर में देखा था, उसके जितने भी थ्योरम थे वो कहीं ना कहीं यूज में आते हैं. वैसे इसके सारे थ्योरम आपको याद होने चाहिए. मैं कई बार बता चुका हूँ, ये चीज़ें से आप वाकिफ़ हैं. सिर्फ आपका रिवीजन है, कुछ जो है यहाँ पर हम थ्योरम लेंगे, इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है, और पूरी चीज़ों को आपको नोट से जो आपको कराया गया उससे पढ़ना इंपॉर्टेंट है. और पिछले जो 1 महीने से बेटा रिवीजन क्लास में चल रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो प्रैक्टिस बार बार कीजिए, और कम से कम ये जो वीडियोस में दे रहा हूँ आपको, ये छूटने नहीं चाहिए. ठीक है, आप जानते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है. अब देखिए, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल. तो ये एकदम पहला आपका जो है थ्योरम है इस चैप्टर का. और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, so what are the properties of parallelogram? You have to know very well about this. Okay, now let's talk about the parallelogram first. The parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel to each other and equal to each other. Suppose that this parallelogram ABCD. Okay, now here AD is parallel to BC and AB is parallel to DC, as well as AD is equal to BC and AB is equal to DC. Okay, so this is known as parallelogram, and there are many examples of parallelogram. You know very well that square is also an example of parallelogram. Rhombus is also example of parallelogram. Rectangle is also an example of parallelogram. Okay, so we don't have to go through the very deep concept, but just go through the some questions, some theorems and proof of that. Okay, so
व्हाट इज आवर थ्योरम इज सेइंग, a diagonal of parallelogram divide it into two congruous triangle। देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेट्स सी इफ वी इमेजिन एन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ओके, दिस इज एन पैरेललोग्राम। थोड़ा सा और अच्छा बनाते बच्चे, ये है, एक मिनट, ये है बेटा, और इसी के पैरेलल हम इस लाइन को भी थोड़ा सा अच्छे से बना दें। अब ये परफेक्ट एक पैरेललोग्राम आपको लग रहा होगा। अब इसके किसी एक डायगोनल को ले लें, चाहे आप इस वर्टेक्स बी को डी से मिला दीजिए या फिर ए को सी से मिला दीजिए, ठीक, कोई एक आपको बेटा डायगोनल लेना है। तो हम डायगोनल ए सी ले लेते हैं, ए को सी से क्या करते हैं बेटा, इस तरह से मीट करा देते हैं। अब आप तो इतना तो देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर बेटा दो ट्राइंगल बन गए, एक ए सी ए बी सी बन गया, दूसरा बेटा ए डी सी बन गया। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो कह रहे हैं कि प्रूफ करिए कि ये दोनों आपस में क्या बेटा, कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, जब बेटा ये यहाँ पर दे दिया गया अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, तो बेटा कह रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होगी, ये बात आपको प्रूफ करनी है। यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू प्रूफ बेटा प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। आप इसको बेटा ए सी बी भी बोल सकते हैं और ए सी डी भी बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमें प्रूफ करना है। अब हमारे पास अवेलेबल क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अवेलेबल ये है कि हमारे पास जो है ये पैरेललोग्राम है। अगर बेटा ये पैरेललोग्राम है तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, गिवन बेटा क्या क्या दिया है यहाँ पर, देखिए ए डी पैरेलल टू बेटा बी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, जैसा कि हमने आपको शुरू में एक बार रिमाइंड करवाया था। दूसरी बात बेटा ए डी इज इक्वल टू बी सी, देखिए ये ए डी इज इक्वल टू बी सी है एंड ए बी एल्सो इक्वल टू डी सी, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तभी तो ये पैरेललोग्राम है। अब देखिए बच्चे, अब हम इन दोनों ट्राइंगल को लें और इनको जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। पहली इन्फॉर्मेशन क्या बेटा, ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी के, लिख लीजिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या बेटा, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, है ना। दो चीज़ें आपको मिल गई। और तीसरी चीज़ बेटा क्या है आपके पास, ए सी जो बेटा कॉमन है, यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। तो यहाँ पर बेटा तीन चीज़ आपको मिल रहा है, साइड साइड साइड। देखिए ये साइड बेटा इस साइड के इक्वल हो रहा है, ये साइड बेटा इस साइड के इक्वल हो रहा है, ये साइड इसी साइड के इक्वल है क्योंकि कॉमन साइड है। तो हम यहाँ पे साइड 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 भी अगर लगा दें तो ये दोनों आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी सी, है ना, कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ पे लिखेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, इतना लिख देंगे। तो ये बेटा हमारा जो है दोनों दो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, ठीक है। ए सी जो आपका है डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में डिवाइड किया, ये बात इससे प्रूफ हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने साइड 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 लगाया है, हमारे पास और भी चांसेस थे कि हम साइड एंगल साइड भी लगा देते। जैसे देखिए, अगर हम इसको ले लिया, इसको ले लिया, अगर हम इस कॉमन को ना भी लेना चाहते तब भी हमारे पास बेटा एक और चीज़ था। जैसे ये दोनों हमारे पास पैरेललोग्राम थे, सॉरी ये पैरेलल थे, ए डी बी सी के पैरेलल था। तो बच्चे हम यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आपस में ले लेते, दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं ना, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे साइड एंगल और ये साइड ले सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते थे, लेकिन हमने साइड 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 से करे, जो कि वेरी वेरी सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 8.1 हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट के बेस पे भी इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि यही इस चैप्टर का बेस है बेटा। सबसे बेसिक जो है थ्योरम यही है, इसलिए इसको आपको अच्छी तरह से आना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको अच्छे से बेटा आप कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट जो थ्योरम है
इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बात प्रूफ करनी है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हटा दें, पहले इसको हटा देते बेटा, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके इसको नोट्स बना लिया करें। देखिए 8.2 को लीजिए, थ्योरम, ये चैप्टर का नाम बेटा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है बिना वजह का, आप तो जान ही गए हैं। तो थ्योरम बेटा 8.2 क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो बच्चे, जैसा कि हमने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई थी अभी कि उसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही बात तो प्रूफ करनी है। अब पैरेललोग्राम कह रहे हैं, इसका मतलब कम से कम बेटा अपोजिट साइड जो पैरेलल है, ये बात तो आपको पता है। अपोजिट साइड जैसे बेटा ये ABCD है, तो बेटा क्या है, AD पैरेलल टू बेटा BC है एंड AB पैरेलल टू DC है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये बात प्रूफ करनी है। यानी टू प्रूफ में क्या है बच्चे, टू प्रूफ AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू बेटा DC हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कुछ करिए मत, सीधे एक डायगोनल खींचिए, A को C से मिलाइए, ठीक है। और अब इनमें जो है इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, देन बेटा बाई CP/CT AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा और AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा। अब लेकिन बात यह है कि ये अभी इक्वल है नहीं, इक्वल करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें हम ऐसा लें कि जो है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाए। तो कॉन्ग्रुएंसी का कोई ये मतलब नहीं होता कि साइड हो तभी हो, तो कॉन्ग्रुएंसी की आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लग सकता है, देखिए बेटा ये जो हमारा है AD और BC अगर पैरेलल है और AC अगर ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, तो बेटा ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होगा। अब यहाँ लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल, ठीक, कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मीट A to C अ डायगोनल, ओके। इतना लिखने के बाद आपके लिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC है ना। अब इसमें बच्चे क्या है, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAD और ये हो जाएगा ACB अल्टरनेट इंटीरियर। दूसरा बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर, अगर इसी की बात की जाए तो दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर बेटा इधर है, देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एंगल बच्चे BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू DCA हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। और तीसरा जो बच्चे होगा वो AC इज इक्वल टू AC कॉमन हो ही जाएगा, AC इज इक्वल टू AC जो कि क्या है बच्चे, कॉमन है, ठीक है। तो तीन बातें हमें मिल गई, एंगल साइड लगा दीजिए, तो बच्चे हमारा हो गया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADC। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक। अब बच्चे ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए, देन बाई CP/CT देखिए इसका जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट है AD इक्वल टू बेटा BC होगा कि नहीं होगा, और ये AB बेटा DC के जो है करेस्पॉन्ड है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग बेटा DC है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देन वी कैन से दैट AD इक्वल टू BC क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग है, और AB इज इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा DC इसके करेस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे लिखेंगे बाई CP/CT, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, ओके। तो बेटा इस तरह से हम ये दूसरा वाला भी हम प्रूफ कर सकते हैं, तो ये आपको प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे दो आपके थ्योरम। इसके बाद हम चलेंगे
थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लें और टाइम देख लेते हैं। 15 मिनट बेटा हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको मिले। चलिए हम इसको हटाते हैं, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ते हैं, किसी और थ्योरम पर चलते हैं। चलिए 8.3 को देखना है। चलिए हमने कई थ्योरम आपको करवाने थे, तो 8.2 हो गया। 8.3 में क्या दिया बेटा, देखिए, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम होगा, ये बात प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे, इसके लिए फिर वही आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप खुद करिएगा। नेक्स्ट है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों थ्योरम 8.3 8.4 हम आपके लिए जो है खाली इन्फॉर्मेशन बता दे रहे, क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो इसको जानते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है 8.5, इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इन ए क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। ठीक है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। तो ये भी बच्चे एक थ्योरम है, इसको भी याद रखिएगा। और एक नेक्स्ट बेटा थ्योरम है 8.6। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। 8.6 में द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अब सबसे पहले बच्चे हम क्या कर लेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाना सबसे पहले, आपको क्वेश्चन आए या ना आए, अगर यहाँ पैरेललोग्राम बनाना तो पैरेललोग्राम आपको बनाना है, बनाइए। उसे जो जो कह रहा है, अगर डायगोनल कर रहा है तो फिर उसका एक डायगोनल बना दीजिए, और सबका नामकरण करते हुए करिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, इस तरह से एक पैरेललोग्राम ऐसे खींचेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब लगे कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन हम पैरेललोग्राम टाइप का ऐसे कुछ बना दे रहे हैं। अब लग रहा है, देखिए ABCD हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। आगे क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स, यानी दोनों डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। एक बेटा डायगोनल्स होगा AC को आपस में मिला दीजिए, दूसरा डायगोनल होगा बच्चे BD, इसको आपस में मिला दीजिए। अब कह रहे हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। एक सेकंड जरा रुकिए। चलिए बेटा, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ क्या करना है बच्चे, पैरेललोग्राम है ये तो दिया है। अब पैरेललोग्राम का मतलब बहुत कुछ दिया है, यानी जब ये कह रहा है पैरेललोग्राम, यानी AD बेटा पैरेलल टू क्या है, BC है, एंड AB पैरेलल टू DC है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, AD इज इक्वल टू BC है एंड AB इज इक्वल टू DC है ना। ये पैरेललोग्राम कहने का मतलब यही आ जाता है। लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, ये बात प्रूफ करनी है। सपोज दैट ये दोनों जो डायगोनल्स होते हैं किसी पॉइंट बेटा O पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना बच्चे, OA इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC, है ना।
ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखिए इन ए ट्राइंगल, देखिए किसी दो ट्राइंगल को ऐसे ले लीजिए, AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है, BOC को ले लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या क्या देख रहे हैं बच्चे, चलिए कुछ अपना आइडिया लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए। अगर बच्चे ये दोनों पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल टू बेटा BC है ही, लिखिए AD इज इक्वल टू BC, यहाँ पे लिखिए गिवन है ना। अगर बच्चे ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, देखिए AB पैरेलल टू DC है और AC को एज ए ट्रांसवर्सल अगर हम एज्यूम करें तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। यानी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOCB, एंगल, एक मिनट, AOD नहीं होगा, यहाँ पर होगा OAD होगा, OAD कह सकते हैं या DAO कह सकते हैं, तो हम इसको DAO बोलते हैं बेटा, DOA इस एंगल को बोलेंगे, ये इसके इक्वल है, जिसको BCO बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं BCO बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। और दूसरा भी हम चाहे तो अल्टरनेट इंटीरियर ले लें, ठीक है। लेकिन देखिए साइड एंगल चाहे तो हम क्या करें बच्चे, अब हमारे पास या तो साइड होना चाहिए, तो हम चाहे तो इसको वर्टिकली अपोजिट भी ले सकते हैं। क्या वर्टिकली अपोजिट लेना उचित होगा? देखिए एंगल साइड हो जाएगा, ठीक तो है, एंगल साइड होता है, तो यहाँ पर हम एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC ले लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमारे पास एंगल साइड लग जाएगा और ये दोनों आपस में बच्चे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, सोचिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो बेटा ये जो हमारा OB है ये वाला लाइन और ये OD है, क्या ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है? तो करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और सिमिलरली बेटा ये वाला भी जो है OC और OA भी आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों भी आपस में बेटा इक्वल हो जाएंगे। तो देन यहाँ पे हम वी कैन राइट हियर सो दैट ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे एंगल साइड, ओके, एंगल साइड लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे लिखिए यहाँ पर OB इज इक्वल टू OD, ठीक है, एंड OA इज इक्वल टू OC बाई CP/CT, ठीक है, प्रूफ्ड एंड हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो यही दोनों तो बच्चे आपको प्रूफ करना था। देखिए OA इज इक्वल टू OD आ गया और OA इज इक्वल टू OC आ गया, सॉरी यहाँ पे OB हो गया, OA इज इक्वल टू OC हो गया, OA इज इक्वल टू OC हो गया और OB इज इक्वल टू OD हो गया। यहाँ पे जल्दी में हमने OB इज इक्वल टू OD करना था, हमने OA लिख दिया था, ठीक है। तो देखिए OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC हो गया, ठीक है। तो बेटा नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। चलिए कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको लेना है, 23 मिनट हुए हैं और देखते हैं कुछ और आपके लिए कुछ है कि नहीं इसमें। जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है, सो दैट यू विल अचीव अ गुड टारगेट। चलिए बच्चा, अब हम आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 पे एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी देख लेते हैं, है ना, एक्सरसाइज भी देखना चाहिए। चलिए जब इतना मिल रहा है आपको तो एक्सरसाइज भी तो लगाना ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में जितना बेटा क्वेश्चन आप लगाएंगे आपका जो है प्रैक्टिस उतना ही अच्छा बनता चला जाएगा, ठीक है। आइए अब देखिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल शो करना है, कह रहे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है।
तो बेटा इसको हमने क्लास में करवाया, एक बार अपने नोट्स में देखिएगा, और अगर ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, या कहिए तो एक हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको करना अगर आप चाहते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम गिवन है इस तरह से, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसके डायगोनल्स को आपस में इक्वल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गिवन क्या बच्चे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल्स आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना। और दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के केस में बेटा आप एक चीज़ तो जानते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी बेटा ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये बात आ जाएगी। अब दूसरी बात क्या आ जाएगी बच्चे, पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट जो साइड्स होते हैं आपस में इक्वल है ही, ऑलरेडी आपस में इक्वल है ही, ठीक है, ये भी बात सही है। और दूसरी बात, अब करना क्या है आपको, जब ये दोनों देखिए इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ये आप ट्रायंगल अगर आप लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंस, यानी ए बी सी और ए डी सी भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये बेटा कॉमन साइड आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बेटा। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जो है इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, हमें इसको क्या करना है, हमें कि एन केन प्रकार एन एंगल ए बी सी को बेटा हमें 90 डिग्री लाना है, तभी हमारा रेक्टेंगल प्रूफ होगा। तो इसको 90 डिग्री लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दीजिए और इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दीजिए। जब सारे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो जो है इसमें सारे ट्रायंगल, ये जो जितने भी इसके ट्रायंगल्स हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे, सबका सम जो है 360 करेंगे तो एक के वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज मैंने क्लास में भी करवाया था, लेकिन यहाँ पे भी करवा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एब्सेंट थे उनका लॉस ना हो, ठीक है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर are equal and bisect each other at right angles, ठीक है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, पहली बात तो यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो बच्चे हम बना लेते हैं कि स्क्वायर इस तरह से। स्क्वायर बेटा किसका एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल का भी एग्जाम्पल है और पैरेललोग्राम का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये है सपोज दैट ए बी सी डी, ठीक है। अब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अगर डायगोनल हम ड्रा करें बी डी और ए सी को, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी हमें टू प्रूफ ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें प्रूफ करना बच्चे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी बी, अगर यहाँ पे पॉइंट सपोज दैट ओ है तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हो रहा है एंड ओ ए इज इक्वल टू ईच अदर एट राइट एंगल, यानी
AC परपेंडिकुलर टू BD, ये बात प्रूफ करनी है। इसको इजी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, कोई भी इसका एक एंगल अगर 90 डिग्री प्रूफ हो जाए तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी एंगल AOD इज इक्वल टू अगर हम 90 डिग्री ला दें तो ये वाला मामला हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसका प्रूफ देखिए। चलिए बच्चे प्रूफ देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, स्क्वायर है। अब स्क्वायर में बेटा जानते हैं आप ऑल साइड आर इक्वल, यानी AD इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, सभी बाहर वाले साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे और सभी कॉर्नर वाले जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है बच्चे, देखिए सबसे पहला काम तो ये कि हम अगर दो ट्राइंगल को ले लेते हैं, जैसे AOD को ले लें और BOC को ले लें, तो ये दोनों तो आपस में कॉन्ग्रुएंस हो ही जाएंगे। देखिए इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों को लेते हैं तो हमारे पास मिलता क्या है बच्चे, AD इज इक्वल टू हमारे पास BC मिलेगा, AD इज इक्वल टू बेटे BC मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा बच्चे, दूसरा एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC मिल जाएगा, BOC मिल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया। अब तीसरी चीज़ ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल गया। और तीसरी चीज़ बच्चे, आप कोई भी इस तरह से आप ये वाला ले लीजिए, OAD ले लीजिए, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर कई बार आप कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का ही एग्जांपल होता है स्क्वायर, ये दोनों पैरेलल होगा, AC ट्रांसवर्सल का वर्क करेगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर मिल जाएगा। इससे जो है क्या होगा बच्चे, ये और ये, यानी ये हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसके कॉन्ग्रुएंसी से कोई बेनिफिट मिला, चलिए कॉन्ग्रुएंस करके रखे रहिए, अभी सबका बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरा काम ये करिए बच्चे, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंस कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों जब आपस में कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो बच्चे ये दोनों देखिए, एक तो ये कॉमन हो जाएगा OA, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, ये वाला देखिए इन ट्राइंगल देखिए AOB एंड AOD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आप ले लीजिए, AOD एंड AOB में ले लीजिए। तो बेटा हमारा ये AD इज इक्वल टू AB है, ये AB इज इक्वल टू AD है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, OA कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA कॉमन है, यहाँ पे गिवन है। और तीसरी चीज़ बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, तीसरी चीज़, क्योंकि आपने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था, तो बेटा बाई CP/CT OA इज इक्वल टू OD हो जाएगा, यानी सॉरी OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OD है ना। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC था, ठीक है, बाई CP/CT आया है, बाई CP/CT, इस वाले कॉन्ग्रुएंसी से ये चीज़ आया था। तो ये दोनों ट्राइंगल बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तब क्या होगा बच्चे, एंगल, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, मैं यहाँ पे मिटा दूँ कहिए तो, ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखिए, सो दैट ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOD दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, देन बाई CP/CT ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD हो जाएगा बच्चे, AOD हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों जब आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पे लीनियर पेयर लगाएंगे आप, दोनों को आप x मान लीजिए अगर आपस में इक्वल है, तो बेटा x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू बेटा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक एंगल आ गया 90 डिग्री, यानी AOD जो है बच्चे 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब है
कि ये वाला जो हमारा पार्ट था AOD को 90 डिग्री प्रूफ कर रहे हैं, यानी ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये तो बात पहले ही प्रूफ हो चुकी थी जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हुए थे, तो बाइसेक्ट तो हो रहे थे, लेकिन 90 डिग्री पर हैं ये बात नहीं प्रूफ हो रही थी, तो ये बात भी प्रूफ हो गई बच्चे। अब तीसरी चीज़ बच्चे जो प्रूफ करनी थी हमारे पास AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करनी थी, ठीक है, AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करनी थी। अब देखिए जब ये दोनों इक्वल हैं, देखिए ये इक्वल इसके है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब दूसरी बात क्या करना हमें, AC इज इक्वल टू, यानी इसका डबल ये है और इसका डबल ये है, तो दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। तो अगर हम इसमें ले लें ACB को लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल बच्चे DBC को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से फिगर बना दे रहे बच्चे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, ऐसे कर लेते हैं ABCD, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब बच्चे हम किसको लेंगे, हम यहाँ पे दूसरे कलर से भी कर दे रहे हैं इसको समझने के लिए। देखिए अगर हम ACB इस ट्रायंगल को ले लें और दूसरा ट्रायंगल बच्चे हम ले लें, इसको ग्रीन कलर से करते हैं, फिर आपको क्लियर रहेगा। दूसरा ट्रायंगल हम ले लें ये DBC और ये। अब ये दोनों ट्रायंगल में बच्चे आप देख रहे हैं, देखिए क्योंकि बच्चे ये क्या है, एक स्क्वायर है तो सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, सारे साइड इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या कर देंगे आप, कुछ मत करिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, यानी ये हरा वाला ट्रायंगल और ये रेड वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस ब्लैक वाले को अभी इग्नोर करिए। इन दोनों में आप देखिए तो आपको मिलेगा क्या बच्चे, AB इज इक्वल टू बच्चे DC मिलेगा, ठीक है, और ये जो हमारा BC है, BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ बच्चे क्या हो जाएगी, तीसरी आप कौन सी एक चीज़ ले सकते हैं, देखिए ज़रा दोनों ट्रायंगल में क्या चीज़ कॉमन है। तो देखिए ये स्क्वायर है तो बच्चे ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल बेटा DCB हो जाएगा, और ईच बेटा 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री के हैं, है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड लगा दीजिए, तो साइड एंगल साइड, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DBC, है ना। ये दोनों आपस में बेटा क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, देन बाई CPCT AC इज इक्वल टू बेटा BD हो जाएगा, यानी AC इज इक्वल टू BD या DB जो भी आप लिखना चाहें, तो हम BD लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए बाई CPCT, इसके ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, साइड एंगल साइड से आपने किया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AC इक्वल टू BD, ये भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेटा आपने क्या किया, एक एक चीज़ को आपने प्रूफ किया, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 चीज़ों को प्रूफ करना था, एक तो बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तीसरा ये जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो तीनों बातों को बेटा हमने प्रूफ किया है, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री भी आ गया, यानी परपेंडिकुलर हैं दोनों डायगोनल आपस में। और यहाँ पर इसके पहले भी जो चीज़ें प्रूफ हुई थी आपने देखा था कैसे हुई थी, बाइसेक्ट करने वाली बात। और तीसरी चीज़ बच्चे कि AC इक्वल टू BD भी इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से आप अपना जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बार बार वीडियो को आप देखेंगे तो आपको चीज़ों कंसेप्ट सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपको कहीं और से ज़्यादा आपको एक्सटर्नल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।